وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ جی ہلو، ہاں کون؟ جی میں نور حسن بول رہا ہوں، آپ کون؟ ہاں میں نور اعظم بول رہا ہوں۔ جی نور اعظم بول رہا ہوں۔ اچھا، نور عالم، اعظم اعظم۔ اچھا نور اعظم، ہاں ہاں، اچھا اچھا، آپ کہاں سے ہیں؟ میں پشچم بنگال سے ہوں، مالدہ ڈسٹرکٹ۔ اچھا پشچم بنگال، ہاں اچھا آپ اچھا، کہاں سے؟ جی میں یو پی رامپور بریلی شریف کے پاس سے ہوں۔ اچھا، یوٹیوب پہ نمبر دیا تھا یہ آپ نے شاید؟ ہاں میں نے ہی نمبر دیا تھا آپ کو۔ اچھا، آپ کا مسلک؟ میں دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا اچھا، دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہاں۔ اچھا، مفتی صاحب ہیں آپ یا مولوی؟ نہیں، ہم مفتی صاحب بھی نہیں، ہم مولوی بھی نہیں۔ بات کیا ہے جی کہ ہم ایک مستری ہے، جیسا بلڈنگ لائن میں سول لائن میں جو کام ہوتا ہے نا اس کا مستری ہوں میں، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، کیا ہے، راج مستری ہیں؟ ہاں راج مستری ہوں، مگر کیا ہے دن سے محبت ہے تو اللہ کے رسول سے محبت ہے، اس کے لیے کیا نماز بھی پڑھتا ہوں اور کیا ہے سنت پر عمل بھی کرتا ہوں اور کیا علماء کا بات سنتے رہتا ہوں، ٹھیک؟ جی ٹھیک جی ہے؟ جی جی عالموں کا بات سنتے رہتے ہیں، جیسے مناظرہ ہوتا ہے اس کو بھی سنتے رہتا ہوں۔ جی، اور آپ کی بہت سارا بات بھی میں سنا ہوں مناظرہ میں، جیسے آپ کا جو فون مناظرہ ہوتا ہے نا اس کے بھی بہت سارا بات سنا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ اچھا تو اسی تعلق سے میں آپ کو مطلب کبھی کبھی کمنٹ بھی کرتا ہوں، جیسا آپ نے علماء دیوبند پر جو مطلب بولتے ہیں، ٹھیک ہے کہ ہم بھی دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہی حساب سے میں آپ کو یہ بات بولنا چاہتا ہوں کہ جی دیکھو چیز کیا ہے، کسی پر بھی ایسا بات چیت ہوتے رہتا ہے، آپ لوگ کو میں سنتے رہتا ہوں۔ اچھا تو کوئی بھی چیز کیا ہے تھوڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جی، جیسا پہلے آپ کا بات ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کوئی عالم ہے، مفتی ہے؟ جی میں ڈرائیور ہوں، گاڑی چلاتا ہوں۔ اچھا، آپ ڈرائیور ہیں؟ جی ہاں۔ اچھا، باقی آپ مطلب بیلوی سے تعلق رکھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر کیا ہے یہ سب گالی گلوچ جو ہو رہا ہے نا، جیسا ہمارا اکابر کو آپ مطلب سنتا ہو، یہ گالی والا جو بک رہا ہے تو یہ چیز میرے کو ٹھیک نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے تو کوئی گالی نہیں بکی یار آپ کے اکابر کو۔ نہیں بکی؟ کون سی گالی بکی؟ آپ تو اشرف علی تھانوی کو کیا بولتے ہیں، سور، کتا، جاہل، یہ سب بکتے رہتے ہیں، میں تو سنتے رہتا ہوں آپ کا مناظرہ میں۔ تو بھائی جان میں نے تھوڑی کہا ہے، یہ تو تھانوی جی نے اپنے آپ خود کہا ہے اپنے آپ کو، میں نے تھوڑی کہا، میں نے تو صرف بتایا ہے۔ یہ سب ایسا ایک عالم ایک انسان کیسے اپنے آپ کو کتا اور بلی اور سور کہہ سکتا ہے؟ بھائی آپ کو علم نہیں ہے تو میری دیکھیے، اگر آپ کو علم نہیں ہے اس تعلق سے تو میری غلطی نہیں ہے، اس میں آپ کی غلطی ہے۔ آپ معلوم کیجئے، تحقیق کیجئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی کہا ہے کہ میں تو اپنے آپ کو کتے اور سور سے بدتر سمجھتا ہوں۔ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ عالم ہے، کوئی انسان کہے گا ایسا؟ ایک عالم ہونے کے باوجود جو دین کا خدمت کرتا ہے، اتنا دن جو دین کا خدمت کیا اور کہا بھی وہ چیز کون سا تعلق سے کہا ہے، پورا چیز پڑھنا ہے تب تو ہم کو اس کا فیصلہ لینا ہے کہ وہ کیسے بولے گا کہ ہم عام انسان کوئی بولے گا نہیں، کسی کوئی پاگل اپنے آپ کو پاگل ماننے کو تیار نہیں، ایک انسان اتنا عالم ہے وہ کیسے بولے گا میں کتا سور سے بدتر ہوں؟ اچھا یہ بتائیے جیسے آپ عبارت پر، ہاں بولیے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے اور آپ کی طرح بشر ہیں؟ دیکھو اس طرح جیسے ہم بلڈنگ لائن میں کام کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو بہت اکثر لوگ جو ہے نا بیلوی کے ساتھ ہی میں کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے کہ ہمارا اکثر جو ہے نا بیلوی جو مطلب لوگ ہوتے ہیں نا، بیلوی لوگ ہوتے ہیں نا، اچھا بریلوی ان لوگوں کے ساتھ، ہاں ان لوگوں کے ساتھ ہی میں تو آپ کو سنی تو نہیں کہتا، بیلوی کہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ چلو سنی کون ہے؟ جیسا ہم دیوبند ہے نا، جیسا ہم آپ کو بیلوی کہتے ہیں، سنی کے بعد تو الگ ہے، جو کوئی
सभी अपने आप को सुन्नी के जैसा उलमा देवबंद भी सुन्नी करते, आप भी सुन्नी का दावा करते हैं, अहले सुन्नत तो जमात का दावा आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, ठीक है। तो चलो खैर वो अलग है, ठीक है, जो हक है वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो अक्सर मैं जो है ना दराइबी लोगों के साथ काम करता हूँ, तो इससे मेरा बातचीत होते रहते हैं। देखो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा मानते हैं, इंसान, देखो वो भी इंसान है, हम भी है, मगर हमारा जो मर्तबा और गुण जो होते हैं ना उसमें हम फर्क है, ठीक है। जैसे अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ा मकाम और इज्जत और मर्तबा दिया, वो चीज दूसरे का जैसे दूसरे किसी को नहीं दिया, ठीक है। ऐसा हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे नबी से अफजल बनाया, ठीक है। तो हमारे नबी को जो जो चीज अल्लाह ने दिया है ऐसा दूसरे नबी का नहीं दिया, ऐसा ईसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, वो चीज अल्लाह उन लोगों को नहीं दिया। हमारा नबी का मकाम जो है सबसे ऊंचा किया। इंसान तो है मगर इंसान में क्या है, ऐसा गुण और मर्तबा जो होते हैं ना तो उसमें फर्क किया अल्लाह ने, ठीक है। हम ऐसा मानते हैं नबी को। बोलिए आप मेरी बात का जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। क्या हम ये कह सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह बशर हैं? आप इसका मतलब क्या ले रहे हैं आप? हम क्या है सबसे बोल लो, वो आपको जानना चाहिए ना। नहीं, देवबंदी हजरात ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं, हमारी तरह बशर हैं। जैसे हम बशर हैं वैसे हुजूर बशर हैं। जैसे हुजूर की शादी, जैसे हमारी शादी होती है ऐसी हुजूर की शादी हुई। जैसे हमारे बच्चे हैं ऐसे हुजूर के बच्चे हैं। जैसे हुजूर का दो हाथ पैर है वैसे हमारे भी दो हाथ पैर हैं। तो इसका मतलब आप क्या ले रहे हैं? आप क्या ले रहे हैं इसका मतलब? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कहा है, फरमाया है, तो इसमें कोई हिकमत होगी ना। हाँ बताइए, सुन रहा हूँ मैं। आराम से बात कीजिए, कोई गाय नहीं, कोई झंझट नहीं, बात कीजिए। मेरा पास भी बहुत वक्त है, आपका पास बहुत ही वक्त होगा। मैं तो आपकी बात को सुन रहा हूँ, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे अंदाज में सुन रहा हूँ। मैं भी काफी देर सुना। मैं प्यार मोहब्बत से बात करने में अच्छा समझता हूँ, क्योंकि मैं सब झगड़े में, क्योंकि मैं देखा एक मिस्त्री हूँ, दिन से मोहब्बत करता हूँ, नबी का सुन्नत से मोहब्बत करता हूँ, और मैं मतलब पूरा कोशिश करता हूँ कि मैं 100% अमल भी करूँ, ठीक है। तो अच्छा, इसके लिए मैं देवबंद से ताल्लुक रखता हूँ, और हमारा उलमा हमको यही सिखाते हैं कि दुनिया में तुमको अल्लाह का हुक्म पे चलना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना है। अच्छा ये हुक्म किसका? हुक्म अल्लाह का होगा, तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। अच्छा, ये दो चीज पर हमको बोलते हैं। ये बताइए, हमारा उलमा हमको ये सिखाते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सच्ची पक्की मोहब्बत करते हैं? बेशक करता हूँ, इसमें कोई शक ही नहीं है। खुदा की कसम खा के कहते हैं? खुदा की कसम खा के। तो खुदा की जब कसम खा के आप कह रहे हैं, हाँ, तो जो इंसान हुजूर की शान में तौहीन करे वो मुसलमान है या नहीं? बेशक वो मुसलमान है कि तौहीन क्यों करेगा? क्यों? अगर जो नबी से पाक से मोहब्बत करे, अल्लाह ने कलमा हमको जो दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें दोनों चीज आ गए। आप कोई अल्लाह को मानेगा, नबी से आपकी ये करेगा। हजरत यही भूल है आपकी कि आप ये समझ रहे हैं कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान है। नहीं, वो नहीं, अभी तो मैं वो नहीं बोल रहा आपको, मैं कलमे की बात कर रहा हूँ। कलमे में दोनों चीज अल्लाह ने दिया। अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो मेरा उतना हिंदी उर्दू उतना तगड़ा नहीं है, ठीक है। अगर लैंग्वेज में कुछ गलती होगा तो अब थोड़ा उसमें ये ना कीजिए, ठीक है। मैं लैंग्वेज पे ज्यादा पकड़ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ काम की बात करता हूँ। जो बात मेरे समझ में नहीं आएगी मैं पूछ लूंगा। वही बोल रहा हूँ ना, मैं एक आम इंसान हूँ। मेरा हो सकता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने में भी कोई गलती हो सकता है, जैसे आपको उलमा का नाम लेने भी हो सकता है, इधर उधर हो सकता है। मैं उसमें ये नहीं पकड़ना, ठीक है। मैं पहले ही आपको ये बोल रहा हूँ। तो देखो, मैं ये बोलना चाहता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुस्ताखी करेगा, जो तौहीन करेगा, वो मुसलमान कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो सबसे पहले ये बताइए भाईजान, अब आप मेरी बातों को सुनेंगे, जवाब देंगे थोड़ा बहुत? बेशक सुनूंगा। आपने मुझसे अभी कहा था कि आपने थानवी जी को कहा था कि थानवी जी कुत्ते और सूअर से बदतर हैं। हाँ, ये आपने गलत कहा, ये बात नहीं कहना चाहिए, यही कहा ना आपने? हाँ, ये नहीं कहना चाहिए ना। तो आपने कहा ये इस तरह की आप गालियां बकते हैं, तो मैंने कहा भाई मैंने ये गाली नहीं बकी है, ये चीज अपने आप को थानवी जी ने खुद ही कही है, ठीक। अब अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जमात वाले लोग, किसी भी जमात वाले लोग, ठीक है, जर्रा नाचिस से कमतर और चमार से ज्यादा जलील बताएं, तो क्या फिर भी वो मुसलमान है वो जमात? हजरत एक बात बोलो आपको, अब जो तकीवातुल ईमान का जो इबारत आप बोल रहे हैं ना, एक कौन सा किताब का इबारत है ये? जब आपने नाम ही ले दिया फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं बहुत दिन पहले पढ़ा हुआ ये किताब, ठीक है। अच्छा, बहुत दिन पहले पढ़ी है, फिर भी याद है आज तक भी? ये तो थानवी जी का किताब नहीं है ना?
थानवी जी की किताब नहीं है, मगर थानवी जी के गुरु की किताब तो है ना। इस्माइल देहलवी का। जी हाँ। तो इसमें देखो, आपको इबारत जो है ना, थोड़ा कोई भी चीज कट कट के नहीं पढ़ना चाहिए, आपको पूरा अरे, पढ़ना चाहिए वो तो इबारत। आप पूरा आप पढ़ दीजिए। हाँ, जैसा मैं अक्सर देखता हूँ, ये जो कोई भी उलमा जब कोई बात करता है ना, बेहलवी में से बहुत तरह, वो आधा अधूरा बात बताते हैं, मगर पूरा बात नहीं बताती। अगर आपको आधी अधूरी बात कही हो तो पूरा आप मुझे सुना दीजिए। अगर मेरी अभी गलती हो मेरे पास किताब नहीं है, मगर पढ़ा हूँ मैं तो, ठीक है। मुंह मांगा इनाम भी दूंगा। सुनो, तो पहले हम वो मसला हल करते हैं ना। आपने बोला जी कि हमारे नए पर्सन हमारी तरह बस है, तो पहले ये मसला भी थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर उसमें मैं तो तौहीन पे बता। देखिए, एक मिनट और सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, मेरा सिर्फ ये कहना रहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना छोड़ दो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे दिल से तस्लीम कर लो, सच्चे दिल से मान लो। तो मैं तुम्हारे जो है, बोलिए सुनो, मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारे जो है हाथ चूम लूंगा, ठीक है, सीने से लगा लूंगा, मगर अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में जर्रा बराबर भी तौहीन करोगे ना, तो जूते की नोक पे उड़ा उड़ा के मारता हूँ मैं नहीं इज्जत देता है। तो अगर कोई करता है तो ना, जी अगर नहीं किया तो वो उस चीज को आपको बराबर पहले समझना चाहिए, ठीक है, कि देखो ये गुस्ताखी है कि नहीं, पहले आपको वो चीज पहले देखना पड़ेगा। जैसा हम अगर गुस्ताखी करता था, हमारा मस्जिद में कलमा लिखा हुआ है, हम आजान में हम फिर कलमे पे आ गए, अगर कलमे की बात दिन की बात कर रहा हूँ ना, मैं दिन की बात कर रहा हूँ ना, मैं दिन की बात कर रहा हूँ ना, आप सुन लीजिए ना। तो हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है? सुनो, हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं, आप जो मोहब्बत की बात बोल रहे हैं ना, वो बात हम आपको बता रहे हैं। हम मस्जिद में अजान पढ़ते हैं 5 टाइम, उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, हम सुन्नतों पर अमल करते हैं, हम नबी का दीन को फैलाते हैं। तो इसमें अगर हम नबी को नहीं मानना होता है या गुस्ताखी करना होता है, हम ये काम क्यों करते हैं? देखिए, मजहब इस्लाम में ये गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। ये अंबिया इकराम, औलिया इकराम की शान में तौहीन करते हैं, ठीक है, उनकी शान व अज़मत को घटाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आप मिस्त्री हैं, ठीक है, हाँ, और शायद अच्छे मिस्त्री होंगे, तभी जो है आप ठेका लेके काम करते हैं, ठेका लेके काम करते हैं ना आप? हाँ, सब चलते, कभी हाजिरी पे होता है, कभी ठेके पे होता है, वो तो काम पे हो जाता है कभी। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अब ये बताइए, जैसे किसी मालिक ने आपको ठेका दिया कि मेरा ये मकान बनने का है, ठीक है, और उसने इंजीनियर के नक्शे से मकान बनवाना है, मालिक ने इंजीनियर, है ना, ज्यादातर इंजीनियर के नक्शे से मकान बनाते होंगे ना आप, या ऐसे ही बनाते हैं? इंजीनियर रहता है हम लोग को, इंजीनियर रहता है ना। तो इंजीनियर अपने हिसाब का लेगा ना माल काम? हाँ, वो हमको बताता है, हम वो हिसाब से करते हैं, जो भी है इंजीनियर का, बोलते हैं। इंजीनियर का जो भी सिस्टम है, इंजीनियर ने कह दिया कि इतने परात रेते में इतना सीमेंट लगना है, हाँ, मिसाल के तौर से, ठीक है, तो आपको उतना ही करना है, उससे कम या बढ़ती नहीं आपको करना है, ठीक है। बोलिए। अब आपने जिन राजों को किया है अपने साथ के लिए, इस काम के बनवाने के लिए कि मेरे साथ ये लोग काम करेंगे, और वो राजमिस्त्री जो है काम को अच्छा नहीं कर रहा है, खराब कर रहा है, ठीक है, क्या आप उस राजमिस्त्री को रखोगे जो काम आपकी मर्जी का नहीं कर रहा है? हाँ, रखोगे? देखो, उसमें क्या है, जब आप हम पर जो गुस्ताखी का ये लगाते हैं ना, वो तो मैं अभी समझाऊंगा। तो हम किस तरह मान लूं उसको? जो इंसान जिस तरह का होता है मैं उसी तरीके से समझा देता हूँ, मेरी ये आदत है। मैंने बोला कि किसी आदमी ने, किसी इंसान ने आपको अपने मकान बनाने का ठेका दिया, ठीक है, और वो मकान बनना है इंजीनियर के नक्शे से, जिस तरह इंजीनियर ने नक्शा एक दिया है आपको, ठीक। अब आपने उस काम को जल्दी से तैयार करने के लिए 2-4 राजमिस्त्री और पकड़े। अब उनमें से कुछ राज ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कई राज तो अच्छे हैं और उसमें एक राज खराब आ गया है, 2 राज खराब आ गए, जो कि काम आपकी मर्जी का नहीं कर रहे हैं, काम जो है वो ऊट पटांग कर रहे हैं, बिल्कुल बेहुंदरा काम कर रहे हैं, जिसमें काम में कोई शाइनिंग नहीं है, ठीक है, काम में कोई शाइनिंग नहीं है, काम आपकी मर्जी का नहीं है। हाँ, हो गया, समझ गया मैं। पहले तो आप उसको समझाएंगे, पहले तो आप उसको समझाएंगे ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, यही है ना। फिर भी अगर उसकी समझ में नहीं आता है, फिर आप क्या करेंगे? फिर भी रखेंगे उसको?
ठीक है, आपका बात मैं समझ गया, ठीक है। क्या करेंगे आप क्या उसके बोल रहे हैं? साथ? उसका हिसाब करके भगा देंगे ना। हाँ, वो तो बात, वो अगर काम गलत करेगा फिर भी उसको अगर सुधारेगा, तो वो अगर नहीं सुनेगा तो उसको फिर क्या करेगा, उसको वही रास्ता है ना। मतलब बाहर कर देंगे ना आप उसको? हाँ हाँ, कर दूंगा, कहेंगे कर चल दूंगा भाई। हाँ। यहाँ 4 दीवारी से बाहर हो जा, जहाँ दिल चाहे वहाँ चला जा। हाँ, अगर वो गलत करता है तो भाई और मैं सही करता खुद है, ही जो सही कह रहा करता है, हूँ, अगर वो सही, हाँ मैंने खुद ही आपका कह बात हो दिया गया? कि वो आपकी मर्जी का काम नहीं कर रहा है, काम में शाइनिंग हाँ, सही। नहीं है। हाँ हाँ, वही है, कहीं ठीक है। कहीं ऊंचा लेवल आ रहा है, कहीं नीचा लेवल आ रहा है, मगर इंजीनियर के काम हाँ। में ये नहीं चलता है। हाँ ये चलता है, बताइए। ठीक है, मैं आपका बात समझ गया, हो गया ना आपका बोल के। तो आप मुझे ये बताइए, आप उस मिस्त्री को, उस राजमिस्त्री को जो भगा आपकी दूंगा, मर्जी भगा का दूंगा, भगा दूंगा, भगा देंगे मर्जी ना? का। अगर वो गलत करते हैं तो भगा दूंगा। मैं भी ठीक है, गलत हाँ, ही कह गलत रहा करते हैं, हूँ भगा दूंगा। हाँ, कि एक मिस्त्री आपकी मर्जी का काम नहीं कर रहा है जैसा आपको चाहिए। मेरा मर्जी का बोले तो जो सही होता है, ठीक है, हाँ मैं भाई, वही चाहूंगा ना, जो सही हो वही चाहूंगा ना। यार कैसे आप मिस्त्री हैं, आपको समझने में इतना टाइम लग रहा है मेरी बात मैं को? समझ गया आपका बात, वही बोल रहा ना, जो सही काम है, जो बिल्डिंग का जो प्लान है, जो डिजाइन है, वो जो सही है, अगर वो हिसाब से काम नहीं होगा, जो प्लान बन गया है वो हिसाब से काम नहीं होगा, उसको बताएगा, अगर नहीं करेगा तो उसको भगा दूंगा। हो गया ना बात क्लियर? जी, तो ठीक है, मजहब इसी इस्लाम तरह। आपके काम से बेहतर है या नहीं? हाँ, एक बार और बोलिए। मजहब इस्लाम आपके काम से बेहतर है या नहीं? बेहतर है, बेशक बेहतर। मजहब इस्लाम में कोई इस तरह की कोई पॉलिसी ऐसी चलती है क्या कि अच्छा काम भी करो बुरा काम भी करो, चलेगा? नहीं, वो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना इस्लाम में? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सही हाँ, चलेगा। कोई कहे कि हम नमाज भी पढ़ेंगे शराब भी पियेंगे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना? हाँ, अच्छा, कोई कहे तुम बगैर वुजू नमाज पढ़ लिया करो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना? हाँ, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि सीधे सीधे इस्लाम में दाखिल हो जाओ अगर इस्लाम में रहना है तो। यहाँ दोगली पॉलिसी नहीं है, ठीक है? हाँ, ये अल्लाह का फरमान है। हाँ, तो जो इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करे, सबसे पहले तो वो मुसलमान नहीं है। कलमा जरूर ही उसको याद है, पंडितों को भी याद होता है, ठीक है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मुनाफिकीन नमाज पढ़ने आते थे मस्जिद नबवी से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बात, मैं आपको बात समझ गया, तौहीन करेगा वो मुसलमान, मगर जो तौहीन आप हम पर लगाते हैं कि गुस्ताखी तुम करते हैं, मगर वो गुस्ताखी है ही नहीं, तो हम किस तरह मान ले उसको कि हम गुस्ताखी करते हैं? आपको तो मैंने हम इस पर बात करेंगे, ठीक है? आपको तो मैंने कहा ही नहीं है। तो पहले सुनो, हाँ सुनिए, आप सुनिए, पहले आप जो है ना इंसान की बसर के जो मसला है ना, आप जो बताए ना, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। जी कीजिए। मैं कोई आलिम नहीं, कुरान के हदीस का पढ़ के हम सुने, मगर आलिमों का बात सुन कर जो हमको याद है, ठीक है? तो मैं आपको बात, जो हमने जो आपका साथ जो बात पेश किया बसर होने का, तो वो आपको कैसा लगा? मेरा बात तो याद होगा ना आपको। मैं जो आपको बोला कि हम इंसान है, गुण और मर्तबा में हम और हमारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्क है, ये चीज मैंने सही बोला कि गलत बोला? बात आपकी नहीं चलेगी ना, अकेले की नहीं चलेगी बात आपकी हम तो यही सीख रहे हैं ना, हमारा जमात यही सीख रहे हैं ना कि हम मर्तबा और गुण में, जैसा एक मिसाल देता हूं आपको, आप सुन लीजिए थोड़ा दिन थाम के। हुजूर एक मिनट, बशर होने पे कोई किसी को एतराज नहीं है, ठीक है? हाँ, इंसान है, बशर बोलो तो इंसान है ना। अरे हाँ, इंसान है, इंसान है ना। हाँ, मगर नूर है या नहीं हुजूर? देखो, इसमें नूर का मतलब आप लोग अलग ले रहे, हमारा उलमा देवबंद अलग ले रहे। अच्छा, क्या बोलते हैं? नूर का बना हुआ बोलते हैं। आप जो जिस्म है ना, आपका जो शरीर है ना, वो नूर का बना हुआ ले रहा है। हमारा क्या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत का नूर है। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? जैसा नूर का मतलब क्या, जैसे अंधेरा जगह को रोशनी कर देना, यही होता है ना नूर का काम। आपने अपने घर की किताबें पढ़ी हैं? सुनो मेरा बात, पहले आप सुन लीजिए ना बात को, उसके बाद आप बोलिए। हम अगर गलत बोल रहे हैं तो फिर आप बोले कि ये देखो ये बात आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है? तो हमको जो उलमा ने, इसीलिए पहले आपको बोल रहा हूँ कि हमारे पास कोई किताब भी नहीं है, हम क्या एक मिस्त्री है, मगर तो दिन से मोहब्बत, इसलिए उलमा का बात मैं सुनते रहता हूँ। अपनी तरफ से बोलना, हम भी पूछता है ना, अपना तरफ से मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। हमारा आलिमों ने जो हमको सीखा वही बात आपका सामने रख रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हिदायत की नूर है। जैसा हिदायत कैसा, जैसा कोई अंधेरा जगह को कोई रोशनी आता है तो रोशनी करता है, अंधेरा हट जाता है। इसलिए उस टाइम जो जाहिलियत की जमाना था ना, लोग अपनी बेटी से निकाह करती थी, माँ से निकाह करती थी,
मरा हुआ जानवर का गोश्त खाती थी। ये जो गलत काम वो लोग करता था ना, हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा और ये जो सही का इल्म दिया, सही चीज को सिखाया और वो चीज आज तक चल रहा है, तो ये क्या है, ये रोशनी है। इसलिए हमारे नबी को मतलब सही रास्ता दिखाने वाला है, बताएगा कि हिदायत का नूर है। हमारे नबी ने हिदायत लेके आया इंसान के लिए, इसके लिए हमारा नबी को नूर कहा गया। जैसा हमने हमारा उलमा थे कुरान को भी नूर कहा गया कि वो हिदायत वाला किताब है, उस पढ़ के इंसान गुमराही से निकल जाते हैं, सही राह पे आ जाते हैं। तो नूर इसके लिए कहा गया हमारे नबी को, नूर का बना हुआ ये चीज नहीं कहेगा वो आप। और कुरान में ये जो आप आयत बताओगे ना, वो चीज आप इधर लिखा हुआ कि हमारा नबी नूर से बना हुआ इंसान है, मतलब नूर कहा गया है। तो नूर का मान नहीं, हमारा उलमा ये बताते हैं कि वो हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर होने में ये नहीं, मगर नूर हिदायत का नूर है। ठीक है, ये चीज हमको बताया गया। ठीक है, आपकी बात पूरी, आप बोलिए। हाँ मेरा बात हो गया, आप बोलिए अभी। देखिए, पहली बात तो आपने ये कहा कि वो हिदायत का नूर है। हाँ, हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत का नूर है, मगर हुजूर से बना हुआ नहीं है। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह, मुझे ये बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम एशिया से पहले, यानी सारी चीजों से पहले कौन सी चीज को पैदा किया, कौन सी शय को पैदा किया? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, सबसे पहले अल्लाह ताला ने, अल्लाह पाक ने तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया, तेरे नबी का नूर पैदा फरमाया। नबी का नूर पैदा है, उधर भी नूर ही बताया ना। तो आप हिदायत का बना हुआ इंसान, वही बोल रहा हूँ ना, नूर उधर भी नूर ही बताया। आप जो बता रहे हैं उधर भी नूर का बना हुआ जैसा जिस्म होता है वो तो नहीं बताया ना, उधर नूर बताया ना। नूर का तो हुजूर, हाँ ठीक है, हुजूर नूर भी हैं, बशर भी हैं, आप ये मानते हैं या हुजूर को सिर्फ खाली बशर मानते हैं, नूर नहीं मानते? हमारा नबी देखो, हम दोनों मानते हैं। हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है, इंसान है और हिदायत का नूर है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जैसे आपको मैं उस टाइम बोला था जी कि देखो एक मिसाल जो आपको मैं देना चाहता था वो मैं दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। ठीक है, जैसा एक बादशाह होता है ना, जैसे किसी बादशाह होता है, एक मुसलमान बस औरंगजेब के नाम की पकड़ लो। ठीक है, उस टाइम फकीर भी होता है, उसका मुल्क में तो फकीर भी होता था ना, होता था कि नहीं होता था? बोलो। तो बादशाह, एक बादशाह का पास क्या रहता है, उसका मेरी कई सारी चीजें जवाब देने को बाकी थी इधर, अभी आप, मेरी आधी अधूरी बात हुई है, मैं पूरी बात भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास वक्त है, आपके पास अगर वक्त नहीं है ना, हो, मैं सिर्फ एक ही चीज अभी बता पाया हूँ, फिर आप इधर बोलने लगे। खाली सिर्फ आपसे मैंने पूछा था और आप अपनी बात कहना शुरू कर रहे हैं। नूराजन भाई सुनो, समझने की कोशिश। अभी वक्त नहीं है ना, तो आप कभी भी मेरे पास फोन करके मेरे से बात कर सकते हो। अरे मैं इसमें ना, मेरा गुस्सा नहीं है। अरे सुनो, ठीक है, आपने अभी कहा कि हम मिसाल सुन लीजिए ना, आप एक मिसाल सुन लीजिए ना मेरा। हम बशर और हमारा नबी में, हम में फर्क बता रहा हूँ आपको। जैसा फकीर भी होता है, तो फकीर, ये फकीर कहाँ की बातें लेके आ रहे हो यार? ये कौन सी मिसाल है? सुन तो लीजिए ना, थोड़ा सुन लीजिए ना, आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ ना, मेरा बात भी आप सुन लीजिए। हो सकता है आप इसका वक्त ज्यादा दे रहे हैं दिन में, इसके लिए आपको थोड़ा हदीस कुरान के बारे में ज्यादा मालूम होगा। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक बादशाह का पास आगे पीछे चलने वाला लोग भी रहता है, उसके पास गुलाम भी नहीं है तो नौकर भी रहते हैं, उसका अगर कहीं जाना है तो उसका सवारी का इंतजाम करने वाला नौकर भी रहता है। मगर वो फकीर के पास ये सब चीज रहता है क्या? क्योंकि नहीं रहता है, वो फकीर है। मगर इंसान होने में दोनों में कोई शक है? एक फकीर भी वही इंसान है और बादशाह भी वही इंसान है, इंसान होने में किसी का फर्क नहीं है। मगर फर्क क्या है? उसका इज्जत का फर्क हो गया। इसीलिए इसी तरह हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इज्जत बख्शा, किसी को नहीं बख्शा है। हम में और हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उम्मत में और नबी में ये फर्क होता है। ये हम फर्क रखते हैं हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, क्योंकि उसका अखलाक, हमारा नबी का चलन, हमारा नबी का बोल, हर चीज जो है ना सबसे ऊंचा किया अल्लाह ने। ये फर्क है, मगर इंसान होने में फर्क नहीं है, इंसान होने में किसी में शक नहीं है। हमारा नबी भी इंसान है, हम भी, पर इज्जत और मर्तबा और गुण में फर्क है हम भी। बस मेरा बात कह दिया, हम ऐसा मानते हैं नबी को। अगर हम गलत बोला तो आप बोलो कि तुमने गलत बोला। तुम्हारे दिल में जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अदावत और नफरत भरी हुई है? नहीं है भाई, नहीं है। कहाँ है बताओ ना, ये बताइए, आप बताओ कहाँ है। अगर आप ये मान रहे हैं कि हम और हुजूर एक ही तरह के बशर हैं और हुजूर को सिर्फ इज्जत बख्शी, एक मिनट, हुजूर को सिर्फ इज्जत बख्शी गई है,
جس طرح ایک فقیر کو یہ ساری چیزیں میسر نہیں ہوتی ہیں جس طرح کے ایک بادشاہ کو میسر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو انسان کا جسم تو ایک ہے نا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں اچھا ایک منٹ, ایک ہوتا ہے, مگر دیکھو جیسا ہمارا نبی کا جو ہر چیز ہے نا, جسم کا ہر چیز ہے نا, مطلب عام انسان سے بہت ہی افضل ہے. جیسا ہمارا بال ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بال ہے, وہ ہر چیز میں نا, ہر چیز میں جو ہے نا, اس کا ہم یہ نہیں بول سکتے کتنے, مگر بہت ہی اعلیٰ اور بلند کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے, کیونکہ مخلوق میں سب سے زیادہ عزت جو ہے نا ہمارے نبی کو اللہ نے دیا ہے. ارے یار تمہارے دل میں یہ اتنی نفرت کیوں ہے, بغض کیوں ہے, جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میں نے بندوں کی طرف ایک نور اور روشن کتاب بھیجا. اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ رہا ہے, ایک نور اور روشن کتاب. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرما رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں کہ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے. بھائی جان تو آپ یہاں گھما پھرا کیوں رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے پسینے میں بدبو آتی ہے, مگر میرے آقا کے پسینے میں خوشبو آتی تھی, اور ایسی نرالی میں فرق ہو گیا. پھر وہی بات جو ہے نا, وہ سب جو ہے نا عزت اور مرتبہ اور گناولی میں فرق ہو گیا. ایک منٹ, تم اللہ سے آگے بڑھ جاؤ گے؟ نہیں, ہم اللہ سے کیسے آگے بڑھ سکتے؟ تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اور وہ آیت بھی محکم ہے, وہ آیت کوئی متشابہ نہیں ہے, مگر جس متشابہ آیت سے تم حضور کو بشر کہنے کی کوشش کر رہے ہو وہاں کچھ حکمت تھی جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا گیا. اللہ نے خود نہیں کہا کہ میرے یہ جو نبی ہیں یہ بشر ہیں, بلکہ حضور سے کہلوایا, اے محبوب آپ کی بات ہے آپ ہی کہو. اب یہاں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی, اب میں بتا دوں آپ کو. ٹھیک ہے, شاید اتنی موٹی گہری بات آپ کو یہ دیوبندی نہ بتاتے ہوں. حضرت جو بھی ہم کو ہم جا کے پوچھ کے آتے ہیں. چپیے, اب پوچھنا ذرا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے تو آپ جانتے ہی ہوں گے. ہاں, حضرت ابراہیم نمرود جو تھا وہ اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کرتا تھا. نمرود کہتا تھا کہ میں خدا ہوں, میں رب ہوں, مجھے خدا مانو. معلوم ہے؟ نہیں, نمرود خدا ہونے کی دعویٰ کیا تھا کہ وہ مورتی پوجا کا یہ کیا تھا. ارے بھیا وہ اپنے, ہاں وہ کون تھا؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہاں نمرود تھا, مگر وہ خدا کا دعویٰ نہیں کیا, انہوں نے مورتی پوجا کو آگے بڑھایا تھا. یہ اس کا دعویٰ تو انہوں نے کیا تھا نا, فرعون نے کیا تھا. ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ کو معلوم نہیں ہے تو مجھے, میری اس میں کیا غلطی ہے؟ آپ نالج لیجئے بھائی جان. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ مجھے خدا مانو, مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, یہ خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب بہت زیادہ جد و جہد ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شرط رکھ دی کہ میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج نکالتا ہے, اگر تو رب ہے تو پچھم سے سورج نکال کے دکھا. سمجھے؟ مگر وہ نہ نکال سکا. مگر یہ لوگوں کے ذہن میں بات فٹ ہو گئی, گھر کر گئی. سمجھے کہ جو پچھم سے سورج نکال دے گا وہ خدا ہوگا. آ رہی سمجھ میں بات؟ ہلو ہلو, کیا بات, آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ ہلو ہلو, کیا ہوا بھائی, آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ ہلو ہلو, بہرحال آدھی ادھوری بات کر کے چلے گئے یار. ہلو, آئی آواز؟ ہلو ہاں ہلو, کیا ہوا یار, میری آواز پہنچ رہی تھی ادھر کہ نہیں؟ ہاں پہنچ رہا ہے, میں بھی تو یہ سمجھ رہا ہوں, آپ کا آواز تو پہنچ رہا ہے, میرا آواز کیوں نہیں پہنچ رہا وہاں پہ؟ ہاں آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی ادھر. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ شرط لگا دی تھی کہ میرا رب پورب سے سورج نکالتا ہے, اگر تو رب ہے, اگر تو خدا ہے تو پچھم سے سورج نکال کے دکھا. نکال پچھم سے سورج. تو وہ تو نہ نکال سکا, مگر میدان سبا میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اشارہ کیا کس کو؟ سورج کو. ٹھیک ہے, سورج واپس پلٹ آیا. آیا کہ نہیں آیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ مطلب ہاں ہاں بتائیے, مطلب کھلم کھلا آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, ہمارے نبی نے سورج کو یہ کیا, وہ پتا اس کا واقعہ میں سنا. واپس پلٹ کا آیا نا؟ ہاں ماشاء اللہ.
अच्छा, चांद के भी 2 टुकड़े किए हैं ना जमीन पे बैठे बैठे? किया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कहलवाई थी। और दूसरी हिकमत इसमें ये है कि अबू जहल को तो आप जानते ही होंगे अच्छे तरीके से। हाँ, जानते हैं। वो अबू जहल हमारे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह जादूगर बताया करता था और कहता था कि इनकी बात ना सुनना, इनके पास ना जाना, इनके करीब ना जाना, जो इनकी बात को सुन लेता है वो इन्हीं का हो जाता है, समझे, ये जादू कर देते हैं, ऐसा बोलता था। तो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर भाग जाया करते थे, ठीक है, जो बूजहली थे, जो बुत परस्ती में मुब्तिला थे, समझ रहे हैं? हाँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया, ए महबूब आप इनसे फरमाओ, ये आपकी बात है, आप फरमाओ, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। खुदा ने खुद नहीं कहा कि ये जो मेरे नबी हैं ये लोगों तुम्हारी तरह बशर हैं। दूसरी बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुसलमान से नहीं कहा था बल्कि काफिरों से कहा था। तो जिसने जो सुना होगा वही कहेगा ना। हाँ बोलो। जिसके सामने जो बात कहेंगे वही वो बात सुनेगा ना। हाँ, मैंने आपके सामने कहा, एक मिनट हाँ, अभी बताऊंगा इंशाल्लाह। मैंने आपके सामने कोई एक बात कही, जैसे मान लीजिए राजमिस्त्री वाली बात बताई थी कि आप भाग जाएंगे या नहीं भगाएंगे उस मिस्त्री को, है ना, भगाएंगे या नहीं भगाएंगे, आपने कहा भगाएंगे, ठीक है, आपने मुझसे कहा कि भगाएंगे, तो मैंने तो यही सुना कि आप कह रहे हैं कि मैं भगा दूंगा। मगर किसी और से अगर आप ये कह दें कि नहीं मैं नहीं भगाऊंगा, उसको समझाता रहूंगा, काम करना सिखा दूंगा, ठीक है, तो वो तो वही बात कहेगा ना कि नहीं मुझसे तो ऐसे कहा है, मगर मैं कहूंगा नहीं मुझसे ऐसे कहा था कि मैं भगा दूंगा उसको। तो जो बात जो सुनेगा वो तो वही बोलेगा ना। समझ में आ रही है बात आपके? मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। हाँ ठीक है, बोलिए। क्या सहाबा इकराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह बशर हैं? अभी मैं और कुछ नुक्ता भी समझाने वाला हूँ इसमें, मगर ये सिर्फ अभी पूछ रहा हूँ। बोलो, आपका बात खत्म कीजिए पूरा। कभी सहाबा इकराम ने तो नहीं कहा हुजूर हमारी तरह बशर हैं? उसका बारे में तो हमको कोई सहाबी का किताब नहीं पढ़ा, मगर वो आयत तो उस वक्त भी मौजूद था ना। अरे जो भाई मौजूद था, सुना है, कुरान तो उस वक्त भी था मौजूद था। और उन्होंने भी किसी को सिखाया, उसके बाद ताबीन के पास आया, वो लोग भी तो उस टाइम भी तो ये सीखना सिखाना होते होते तो आए ना। एक मिनट, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक मिनट, वो लोग भी तो ये आयत पढ़ता था, दूसरे को सिखाता था। कुरान में आपने ये नहीं पढ़ा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह ना पुकारो कि जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो? सब ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, आप जो बता रहे हैं अच्छी बात है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्थान में जो आप बता रहे हैं ना, जो चीज आया, जितना अल्लाह पाक ने जितना हमारे नबी के स्थान में बताया, जो कुरान और हदीस पे मौजूद है, उसमें किसी का शक नहीं, कोई इनकार नहीं कर सकता। ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया, एक मिनट, ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया, हद से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, जो नहीं है वो भी हम बोलते रहते हैं, वो चीज नहीं होना चाहिए हमारे। जो हम नूर बता रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादा बढ़ाने जाएगा ना कि हम इंसान हम गलती करके बैठेगा। हम जो नूर बता रहे हैं, क्या ये हद से आगे बढ़ना हो गया है? नूर हम भी बता रहे हैं, मगर हम नूर इसको समझ रहे हैं कि अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत की नूर है, हम भी नूर बता रहे हैं, हम तो नूर का इनकार नहीं कर रहे हैं। थोड़ा हिदायत से मुझे थोड़ा समझा दीजिए, हिदायत से क्या मुराद ले रहे हैं? अच्छा एक मिनट, पहले इधर की बात पूरी कर दूं। सहाबा इकराम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन है मेरी मिस्ल? सहाबा इकराम ने कहा या रसूलल्लाह, हम में से आपकी तरह कोई नहीं, आपकी मिस्ल कोई नहीं, ठीक है। सहाबा इकराम मना कर रहे हैं, मोमिन मना कर रहे हैं, मगर काफिर कह रहे हैं कि हुजूर हमारी तरह बशर हैं। तो जिस जमात ने जो सुना वो पुकार रही है, देवबंदियों की जमात, उनके बाप दादाओं से कहा हुजूर ने कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, ठीक है। तो देवबंदियों के बुजुर्गों ने जो सुना वो अपनी औलादों को सिखाया। आज इसी तरह देवबंदी भी बोल रहे हैं। और सहाबा इकराम ने जो जवाब दिया, जो सुना वो जवाब दिया, और जो मुसलमानों ने सुना वो मानते हैं, वो अकीदा रखते हैं, ठीक है। जो मुसलमानों ने सुना वो मुसलमान बोलते हैं कि हुजूर हमारी तरह नहीं, हम हुजूर की तरह नहीं। मगर जो मुशरिकों ने सुना, काफिरों ने सुना, वो काफिर पुकार रहे हैं और कह रहे हैं, पहचान हो गई कि किस सब से, किस जमात से हुजूर ने क्या फरमाया। तो जिसने जो सुना वही पुकार रहा है, अपनी पहचान बता रहे हैं देवबंदी हजरात कि हम इस जमात से नहीं, उस जमात से हैं।
आप जो अभी बोलना चाहते हैं वो ऐसा नहीं। आप बोलते हैं कि बैल भी जो है ना वो मुसलमान है, वो मुसलमानों से सुन के आया, देवन जो है ना वो बाप दादा काफिर है, वो काफिर से सुन के आया। ये बात सही नहीं है भाई, यही बात सही है। हाँ, नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि आपको एक बात बता रहा हूँ, हम आलिम ने फिर भी आपको अपना जो अकाबिर है ना अहमद रजा साहब, उसका वो इल्म का सनद मालूम है? आपका किसी आलिम को मालूम होगा? बोले इल्म का सनद मालूम है आपको? वो जो कहाँ से सीख के आया मालूम है? वो आलिम थे या नहीं थे, आप ये बताइए। कौन? आला हजरत। वो हमने जो आपका उलमा के मुंह से सुन रहा, वो कारी अहमद रजा साहब कारी था, आलिम था, जो उसका इल्म का सनद मालूम है आपको? 108 उलूम व फुनून उनको हासिल थे। तो इसी तरह हमारा अकाबिर का इल्म का सनद है, जो मैं अपनी उलमा से सुना हूँ मोबाइल में। आप बोलते हो उसका बाप दादा काफिर था, वो काफिर से सुन के आ रहे, ये कहाँ से हो सकता है? मतलब आप आका किसको बोल रहे हैं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेगा तो हमारा नबी हो गया ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेगा तो हमारा नबी हो गया ये। अरे भैया, तो आपने कहा कि मतलब आप बात को क्यों घुमा रहे हैं यहाँ? किधर मैं सीधा बात कर रहा हूँ, मैं घुमा नहीं भैया, तो मैंने थानवी के ताल्लुक से ये सब बात बताई है, देवबंदियों के ताल्लुक से बात बताई है कि जिसने जो सुना उसने वो पुकारा। हाँ ठीक है, जिसने जो सुना उसने वो पुकारा। मेरे आका ने काफिरों से कहा, मेरे आका ने काफिरों से कहा मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, तो काफिरों ने जो सुना वो काफिर पुकार रहे हैं। मुसलमानों से कहा, सहाबा से कहा अय्युकुम मिसली, तुम में कौन है मेरे मिसले? सहाबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह, हम में से कोई नहीं आपके मिसले। तो मुसलमानों ने जो सुना, मुसलमान वो पुकार रहे हैं। हम कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह नहीं, हम हुजूर की तरह नहीं। देवबंदी कहते हैं हुजूर हमारी तरह, हम हुजूर की तरह। क्योंकि वो कुरान हदीस भी कर रहा है ना, आपको ये बात वो कुरान से हदीस से साबित भी कर रहा है ना ये बात। वो बोल रहा है कि हमारी तरह बसर है। जैसा आपने जो हिकमत बताया, आपने 2 हिकमत की बात की, ठीक है, किया ना जी, कि सूरज को एक किया, चांद को 2 टुकड़ा किया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ खाली शॉर्टकट में बहुत सारी बातें है ना। हाँ, शॉर्टकट में बताई है मैंने। ये जो इसकी वजह से जो हमारे नबी ने बोला था कि हम तुम्हारी तरह बसर है, ये चीज आपको कहाँ मिला? कुरान हदीस से मिला? हाँ, कुरान से साबित है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहलवाया ना, कुरान से साबित है जी। अल्लाह पाक ने खुद नहीं कहा ना। और ये आयत मुतशाबे है, और आयत मुतशाबे से अकीदा बनाना जायज नहीं है। हाँ, और मुहकम आयत को तुम मानते नहीं, जिससे अकीदा बनाना जायज है। तो वो तो बहुत बड़ा वो इल्म का बात है, बहुत अंदर का इल्म का, जिसका फेका का कुरान का हदीस का इल्म का वो करेगा। मगर आप जो ये बात बता रहे हैं ना, आपको मैं इतना पूछ रहा हूँ, आप जो हिकमत की बात किया ना, वो हिकमत आपको कहाँ से मिला? देखिए, इसकी वजह से हमारे नबी ने बोला था, क्योंकि हमारे नबी को अल्लाह ने और भी ऑर्डर दिया ना कि तुम बोलो, ऐसा बोला, कुरान में बोला। उसकी जगह उसके अलावा और भी जगह पे बोला, अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब आप इनसे फरमा दीजिए, कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। और कहलवाया किससे? क्या बोल रहा हूँ, सुनो, कहलवाया किससे? काफिरों से, मुशरिकों से। क्या हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर और मुशरिकों की तरह बशर हैं? जवाब दीजिए। इंसान है ना भाई, काफिर मुशरिक भी तो इंसान है ना, मगर उसको हिदायत नहीं है ना। अगर वो हिदायत पे आता तो वो भी तो ईमान वाला बन जाता है ना, वो भी जन्नत का चलिए एक बन जाता है ना। हाँ, हिदायत के ताल्लुक से आप कुछ कह रहे थे, थोड़ा हिदायत से बताइए, क्या हिदायत का क्या नूर, थोड़ा किस तरह मिसाल दीजिए जरा। मैं आपको हिदायत के बारे में उस टाइम बताया कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नूर बताया गया है ना, हाँ, वो दुनिया में जहालात में भरा था, उसको सही और गलत इल्म कुछ था ही नहीं उस टाइम। अच्छा, देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। अच्छा, तो कितना जहालत था, उन लोग बेटी से शादी करता था, माँ से शादी करता था, बच्ची को गाड़ता था। अच्छा, तो उसी तरह तो अच्छा और बुरा अमल हो गया, ये तो अच्छा और बुरा अमल हो गया, यानी अच्छा और बुरा अमल सिखाने के नूर है। मतलब उसको सिखाने वाला कौन उस टाइम नहीं था ना वैसा। तो फिर हमारा नया बॉस, देखो आप क्या बोल रहे हैं इधर का, मैं भी तो यही पूछ रहा हूं, सिखाने वाला। तो वो हिदायत किसको कहते हैं कि हम गुमराही से, मतलब मूर्ति पूजा से, इसका भी मेहनत किया ना, मूर्ति पे हट के हम एक अल्लाह को पहचान ले, इसी को तो हिदायत कहते हैं ना। तो तबलीगी जमात भी नूर हो गई फिर तो हिदायत की। किसका? फिर तो तबलीगी जमात भी हिदायत की नूर हो गई, क्योंकि वो भी जो है गाँव टोला जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई नमाज पढ़ो, लोग नमाज पढ़ने लग जाते हैं। सुनो बात, वो हिदायत उन लोगों के ईमान को लूट लेते हैं। नबी का काम को हम नकल कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो काम है ना, वो काम को हम नकल करके, देखो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो हम नबी का गोलाम होते हुए 2 काम हमको करना है। एक तो नबी का गम को अपना गम बनाना है, नबी का काम को अपना काम बनाना है। बात समझ में आ रहा है कि ये हमारा तबलीग में भी यही सिखाया जाता है कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करते हो, 2 चीज अपनाओ। मतलब बहुत सारा चीज है उसमें से, क्या है
नबी का काम क्या था? सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था, आप सुन लीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था कि मेरा दुनिया का हर एक इंसान मतलब मुश्रिक निकाल के जहन्नम से निकल जन्नत में चला जाए। और नबी का काम जैसे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, अभी तो कोई नबी नहीं आएगा ना, तो वो काम कौन करेगा? वो उम्मत को करना है भाई, चलो नमाज में चलो, अल्लाह की तरफ दौड़ो, ये काम हम कर रहे हैं, इसमें बुराई कुछ भी नहीं है। आप लोग इन दोनों ही कामों से दूर हैं। नहीं, हम तो करते हैं ये काम, दूर कैसे है? नहीं, इन दोनों ही कामों से दूर हैं आप। हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग चलो भाई नबी का सुन्नत को पकड़ो, अल्लाह का हुक्म को मानो, हम यही इसी का दावा सबसे पहले देते हैं लोगों के पास जाके कि भाई अल्लाह बड़ा है, अल्लाह के काम बड़ा है, और अल्लाह के हुक्म को मानो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे आओ। देखो हम इसी का दावत देते हैं। अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते तो हुजूर की आप तारीफ करते, ना कि तौहीन। तारीफ तो हम करेंगे उतने जितना अल्लाह ने कुरान हदीस से साबित है, उतना ही करेंगे ना, ज्यादा बढ़ा नहीं जाएगा। हमसे गलती हो जाएगा, फिर हम दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। तुमसे क्या गलती हो जाएगी? क्योंकि हम इंसान है। जब कुरान फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, ये कुरान है, तहकीक हाँ आ गया अल्लाह की जानिब से। अब ये तहकीक क्या है? हाँ समझ गया, बोलो। समझ ना, जिसमें कोई शक ना हो, बेशक हाँ, तहकीक आ गया अल्लाह की जानिब से तुम्हारी तरफ एक नूर और रोशन किताब। किसकी तरफ? बंदों की तरफ, मोमिनों की तरफ, मुसलमानों की तरफ, है ना। अब ये तहकीक क्या है? तहकीक वो है जो बिल्कुल जो है साफ सफाफ, जिसमें कोई शक ना हो किसी तरह का, बेशक। अब जब अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि बेशक, अब इसमें शक करने की जरूरत नहीं है। एक नूर और रोशन किताब, यानी दो चीजें आई, एक नूर और रोशन किताब। आपके पास साथ दो बंदे हैं, ठीक है, आप मेरे पास आ रहे हैं और आप दो बंदे हैं। आपने कहा नूर भाई हम दो बंदे आ रहे हैं, मैंने कहा कौन कौन? तो आपने कहा मैं और फला भाई, मैं और फला भाई, ठीक है, यही कहेंगे ना? हाँ बोलिए। यही कहेंगे ना, मैं और फला बंदा है, या ये कहेंगे मैं और मैं? एक ही चीज को मैं और मैं थोड़ी कहा जाएगा, यानी डबल चीज में और लगता है। हाँ, डबल चीज में और लगता है ना। हाँ। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी तफसीर में फरमाते हैं, इब्न अब्बास, तफसीर इब्न अब्बास में, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर कहा गया और कुरान पाक को किताब कहा गया। नूर से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और किताब से मुराद कुरान पाक है, कुरान मजीद है। अब आपको शक क्यों है ये बताइए, जब खुदा खुद फरमा रहा है। मैं आपको शुरू से ये बोल के आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोल के आ रहे, आपको दे रहा हूँ, शुरू से आपका इसका जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, कि हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर बोला, हिदायत का नूर, उधर नूर का बना हुआ नहीं बोला, वो नूर का मतलब हम हिदायत का नूर समझ। ऐसे नहीं मानोगे अब तुम। ये बात क्लियर हो गया, हमने अपना बात रख दिया। थानवी जी की नशरुत्तीब किताब पढ़ी है आपने? कौन सी किताब? थानवी जी की किताब नशरुत्तीब। नहीं, मैं वो सब किताबें ढूंढते रहता हूँ, जैसा अरवा सलासा। अरे सुनो क्या मुस्ताकिम में मिलता नहीं है हमको उर्दू नहीं आता है। अच्छा, उर्दू नहीं आता है। अच्छा, एक मिनट, मिस्त्री साहब, जो ये अकीदा रखे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर से पैदा फरमाया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने नूर से पैदा फरमाया है, ऐसा अकीदा रखने वाला इंसान आपकी नजर में मोमिन है, काफिर है, क्या है? नूर से पैदा? हाँ, देखो, इंसान का गलत कहने के लिए, काफिर कहने के लिए, मुशरिक कहने के लिए, उसके लिए एक ना पुख्ता ये होना चाहिए। ये सब बातें छोड़ो, आपका अकीदा क्या है मुझे वो बता दो, मैं आपके घर से साबित करूंगा इंशाल्लाह। हम उसके ऊपर ऐसा तो फतवा नहीं लगा सकते, मगर हम तो ये बोल सकते हैं, बात सुनो ना, मेरा बात सुन लीजिए आप, कि हम अगर कोई ये बोलते हैं कि हमारा भी नूर से बना हुआ है, तो हम उसको, मैं ही बोल रहा हूँ, मेरा बात, मैं आलिम नहीं हूँ, मुफ्ती नहीं, तो जो सही हुक्म होता ना मैं बोल देता,
मैं ये बोल रहा हूँ देखो भाई तुम ये गलत सोच रहे, गलत बता रहे कि तेरा समझ गलत है, ऐसा नहीं है भाई। हमको उसको हम यही बोलेंगे और सही समझा देंगे, क्योंकि हमारा जैसे कुरान में अल्लाह ने ये भी फरमाया कि जैसे हम मिट्टी डालते हैं किसी को दफन, तो बोलते है कि नहीं बोलते कि भाई मिनहा खलकनाकुम, हमने तुमको मिट्टी से बनाया, बोलता है कि नहीं बोलता है, और फिहा नुईदुकुम, ये पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। तो ये आयत तो हमारे नबी पर भी नाजिल हुआ ना, क्या हमारे नबी पर ये आयत नाजिल नहीं हुआ? तो इसमें हमारे नबी पर भी नाजिल हुआ, तो इसमें आप क्या बोलोगी? यानी अगर वो पढ़ा गया तो हुजूर माज़अल्लाह मट्टी में मरकर मिल गए? नहीं, मिलने के बाद किया मैंने। सुनिए, मैं और मिलने के बाद तो नहीं किया ना। सुनिए, मिट्टी बोला हमने, मिट्टी बोलने का मतलब हमारा नबी भी इंसान है। देखो देवबंदी जो लोग होते हैं, जो देवबंदी जमात में रहते हैं, वो अकल से भी पैदल होते हैं और इल्म से भी पैदल होते हैं। अकल से भी यतीम, इल्म से भी यतीम। ऐसा कहा है भाई? क्योंकि बिल्कुल देवन जो दिन का खिदमत किया, आप उसका कारनामा देख लीजिए। क्योंकि हम यही बोल रहे, हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं कि उलमा देवबंद ने क्या किया, उसका कारनामा आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए उन्होंने। और अल्लाह जिसको पसंद करता है उससे दिन का काम लेते हैं, ठीक है? आप कारनामा पढ़ लीजिए उलमा देवबंद का कि वो आज तक क्या करते जा रहे हैं। सुनिए, थानवी जी अपनी किताब नशरुद्दीन दुनिया में मेहनत कर रहे हैं उलमा देवबंद, पूरा दुनिया में मेहनत कर रहे हैं। सुनिए, सबसे अव्वल आपके नूर पाक का पैदा होना, समझे? सबसे पहले आपको यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से पैदा फरमाया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये थानवी जी की किताब नशरुत्तीब कह रही है। नूर से पैदा फरमाया? हाँ, समझ रहे हैं जनाब? वो पढ़ के देखना पड़ेगा, उसका आगे पीछे क्या है मेरे को किताब का नाम बिल्कुल देखिए, और इसमें और भी पूरी वजाहत की है जनाब, मैं बता दूं। फिर सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा फरमाया, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के 4 हिस्से किए। अलग हुआ है कि नूर पैदा फरमाया, बात तो ये है ना भाई। अरे यार, उसमें ये कहा लिखा होगा हमारा, वो बात अजीम। अच्छा ये बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत नूर है या बशर? सुनो, हमारा नबी जो है ना आदम अलैहिस्सलाम का बेटा है। अरे यार ये बताइए, बाप मिट्टी है, बेटा फिर नूर, तो नूर बेशक नूर, मगर हिदायत का नूर है, ये से बना हुआ नहीं है। ये बताओ, सबसे पहले नबी कौन है? मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले नबी कौन है? हाँ, सबसे पहले नबी कौन है? देखो उसमें, देखो हम उतना ये सवाल मत पूछना मुझसे, क्योंकि मैं तो आप ये सवाल क्यों कर रहे हो कि हमारे नबी आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं? तो बेटा नहीं है, ये सवाल किया है तो फिर इसका भी जवाब दो कि सबसे पहला नबी कौन है? हमारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया सबसे पहले, मगर क्या उसका बॉडी बनाया था? ऐसा है? ऐसा तो नहीं है ना। नूर को बनाया था। एक मिनट, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे तो वो कब थे? नहीं, नबी थे तो कब थे ये बताइए। आप हमको ये बता दीजिए, जैसे हमारा नबी दुनिया में जिस तरह अल्लाह ने भेजा, उसी तरह अल्लाह ने बना के रखा था। अरे यार, आपने कहा कि हमारे नबी सबसे पहले नबी हैं, हमारे नबी हैं सबसे पहले नबी, यही कहा ना आपने? हाँ, तो कब थे नबी? ये सुन रहे हैं ना, कब थे नबी? हाँ, तो आपने यहाँ पे मिट्टी का नूर का मसला ये कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना, मतलब कब थे नबी? हमारा नबी का जो नूर बना के रखा, वो बात तो ठीक है आपका, वो तो गलत नहीं है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा नबी दुनिया में जिस तरह अल्लाह ने भेजा उसी तरह बना के रखा था। मैं तभी कहता हूँ कि देवबंदी हजरात और देवबंदियों में रहने वाले लोग अकल से भी पैदल हो जाते हैं, इल्म से भी यकीन हो जाते हैं। आप समझाओ ना हमको, हम तो आपको बात रख रहे हैं ना, आपको समझा रहे हैं दोस्त, हम तो समझा रहे हैं। मैं भी आपको समझा रहा हूँ, मैं भी आपको समझा रहा हूँ, इसमें आप गलत साबित करो ना। थानवी जी की किताब नशरुत्तीब से साबित कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया, फिर हुजूर के नूर के 4 हिस्से किए, फिर उनसे लोह कलम बनाया गया, समझ रहे हैं, जमीन आसमान बनाया गया, फिर जो है चौथे हिस्से के जो है फिर 4 टुकड़े किए, फिर अल्लाह ताला ने बहुत ये जो है सब खल्क़त को पैदा फरमाया। हाँ मेरा भाई, मैं समझ गया आपको, मगर आप जो बात मुझे मत समझिए, थानवी जी की किताब को समझिए, मुझे समझने की। हाँ, इससे ये कहा साबित होता है कि हमारे नबी का जिस्म जो है ना नूर से बनाया, नूर को बनाया, वो तो सही बोल रहा है, मगर जिस्म को जो बनाया हमारे नूर से बना हुआ है, वो कहाँ साबित होता है यार? क्यों? हाँ चलिए हवाला सुनिए थानवी जी का। सबसे पहले नूर मोहम्मद को पैदा फरमाया, ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला ने
خلقت کی ابتدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے فرمائی، سمجھے؟ پھر پانی کو پیدا کیا، پھر عرش کو پیدا کیا، پھر ہوا کو پیدا کیا فرمایا، پھر نور و قلم، نون و قلم، سمجھے، اور لوح کو پیدا فرمایا، پھر عقل کو پیدا فرمایا۔ نور محمد مادہ تخلیق کائنات ہے، پس زمین و آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، سمجھے، تخلیق کا مادہ اول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہے۔ ہمارا آپ جا کے اپنے مولوی صاحب پہ فتوا لگا دیجیے جا کے ڈائریکٹ۔ سنو ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولا سب نے باپ کا مدھم سے آیا اور میں بھی باپ کا مدھم سے آیا ہوں۔ جیسا نسب نامہ پڑھ لیجیے آپ، جیسا ہمارا نبی عبداللہ کا بیٹا عبداللہ، عبد المطلب کا بیٹا عبد المطلب، حاسم کا بیٹا حاسم، عبد مناف کا بیٹا، اسی طرح ہمارا نبی بھی پیٹ میں آیا، پیٹ میں آنے کے بعد پھر اللہ نے ایک منٹ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ سب حکمتیں ہیں، یہ سب حکمت ہے اللہ پاک کی، یہ سب اللہ پاک کی حکمت ہے۔ آپ سب لفظوں میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کا خلاصہ کر دیا قرآن سے حدیث سے کہ میں انسان ہوں، اور آپ بتا رہے ہیں کہ نور سے بنا ہوا، یہ تو ثابت ہوتا ہی نہیں۔ تو تھانوی جی کو چپل ماریے جا کے، پھر نہیں میں تو تھانوی جی کی کتاب سے ثابت کر رہا ہوں، ماریے تھانوی جی کی چپل جا کے، بے ہوش کر دیجیے سالے کو مار مار۔ آپ لوگ عبارت کو سمجھ رہے ہیں، جیسا عمر قاسمی صاحب کا جیسا آپ کے ساتھ گفتگو ہوا تو وہ بھی میں سنا تھا، ٹھیک ہے؟ تو جو جواب دے رہا اس کا بات تھوڑا صحیح سے سننا چاہیے۔ دوسری بات کیا ہے، جیسا آپ کا بھائی میں آپ کے گھر دیکھیے، میں نے آپ کی بات کو تسلی سے سنا، اور آپ کی بات کو سننے کے بعد سمجھنے کے بعد میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اتنا جواب نہیں دے سکتا، اتنا جواب نہیں دے سکتا۔ جب اتنا اور اتنا جواب نہیں دے سکتے، میری بات کو سن بھی نہیں سکتے۔ آپ جو عبارت پڑھ رہے ہیں نا، وہ عبارت ہم کو بھی پڑھنا ہے۔ آپ کیا پڑھ رہے ہیں وہ ہم کو جاننا چاہیے نا، اس کے لیے میں بول رہا ہوں نا، جو میں سنا نہیں پڑھا نہیں اس پر میں بات نہیں کرے گا نا۔ کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ وہ تھوڑا بات نہیں ہے، بہت سارا بات بتایا آپ کو۔ کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ کرے گا میں بہت سارا بات بتا، کیونکہ دیکھو میں یہ نہیں بول رہا، مگر کوئی بریلوی عالم ایسا ہے جو وہ کٹ کے بات بتا رہا ہے۔ ایسا چلیے یہ بتائیے، نام سنا ہوگا، عبد المصطفیٰ کا نام سنا ہوگا۔ ارے چھوڑیے ایک منٹ، یہ بتائیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے تو کیا کوئی دیوبندی نور بن سکتا ہے؟ یار آپ تو کمال کی بات کرتے ہیں۔ ارے کمال کی بات نہیں، میں تمہارے گھر سے ثابت کروں گا یار، میں کمال کی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ میں دیوبندیوں کی اوریجنل حقیقت، اوریجنل چہرہ میں دکھانا چاہتا ہوں، میں کمال کی بات نہیں کرتا، کیونکہ آپ کا گفتگو میں سنتا ہوں نا، آپ جو مطلب انجامات لگا رہا ہے نا چلیے سنیے تھانوی جی پر۔ اچھا میرا بات ایک منٹ سن لیجیے۔ تم سنتے نہیں ہو، مجھے بڑا غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تم دیوبندیوں کی یہی حقیقت ہے، یار سنتے نہیں ہو دوسرے کی بات۔ تو سنو، اب میں تمہارے گھر کا نور ثابت، میں تمہارے گھر کا نور دکھاتا ہوں اب تم کو۔ آپ بولیے ٹھیک ہے۔ کتاب کا نام ہے اکابر کا مقام تواضع، ٹھیک ہے؟ ہاں بولیے۔ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے سے انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا دیوبندی مولوی پورا نور۔ اب وہ کون سا دیوبندی ہے؟ سنیے نام، یہ شخص مولانا سہارنپوری لعنت اللہ علیہ پورا نور ہے۔ میں اس میں تو کچھ اور لکھا نا، میں لعنت اللہ علیہ کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ میرے نزدیک لعنت اللہ علیہ ہے۔ ہمارے نبی کو تم نور نہیں مانتے اور اس خبیث الدہر کو نور مان رہے ہو۔ نور مانتے ہیں، نور ہم مانتے ہیں، ہم بولے نا ہزاروں بولے نور مانتے ہیں، نہیں مان رہے نور مانتے ہیں۔ 1 گھنٹے سے اسی چیز پر تو بحث چل رہی ہے، اگر نور مانتے تو ہدایت کا نور مان رہا ہوں نا، آپ جو بولتے رہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کے لیے ہم اس کو نہیں مان رہے۔ اچھا تو یہ جو تمہارا جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پورا نور تھا، یہ کس طریقے سے پورا نور تھا؟ ذرا اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے، کس طرح سے تھا پورا نور؟ میں آپ کو بتا دیا، جتنا جو سن رہا تھا میں بہت دیکھو ایک گھنٹہ آدھا گھنٹے کے اوپر سے بات ہو رہی ہے، کوئی نہیں ہے، دن کی بات ہو رہا ہے، ادھر ادھر کا بات نہیں ہو رہا ہے۔ آپ پورا ٹاپک میرے اوپر ڈال دے گا ادھر ادھر کا، تو میں تو اتنا نہیں بول پائے گا، مگر کہ آپ سے جو میں سنا ہوں، کیونکہ آپ جو عبارت پڑھ رہے ہیں نا، آپ کا علماء جو عبارت پڑھ رہے ہیں نا، کبھی کبھی کٹ کے پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو اس کا یہ بتا رہا ہوں۔ اور یہ جو ہے نا عبد المصطفیٰ ہے نا، نام سنا ہے نا عبد المصطفیٰ کا نام؟ آپ نے سنا ہے؟ سنا ہے یار، سنا ہے۔ اس کے بعد میں سنتا ہوں نا، وہ ایسا بات بولتے ہیں نا، صحیح بات بولتے ہیں، مجھے بھی برا لگتا تھا ان کی بات کا، میں ان کی بات کو ہی سن کے جو ہے اہل سنت والجماعت کے اندر داخل ہوا، اور مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ یہ بریلوی لوگ ہمارے علماء پر توہین مطلب طنز کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، مجھے غصہ آتا تھا مولانا عبد المصطفیٰ رودولوی کی بات سن کے، ٹھیک ہے؟ میں نے اسی لیے خریدی تھی۔ بالکل صحیح بولتے ہیں، میں نے تحقیق کی۔ نہیں بولتے، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، صحیح نہیں بولتے ہو۔ دیکھو بتا رہا ہوں نا، سنو کہ تمہارے پاس کون سی کتاب ہے؟ کون سی کتاب سرچ کری ہے تم نے؟ میرا پاس ایک تقویۃ الایمان ہے جو میں پڑھا ہوں، ٹھیک ہے؟ تمہارے پاس تقویۃ الایمان ہے، اس میں سنو اب اس میں یہ فجائل عمل ہے۔ ارے فجالے کیا فجالے ہے یار،
खजाले को बाद में लेके आना। अमल है, मुंतखब हदीस है। अरे हो गया यार, ये 3 मुंतखब। किताब है मेरे पास। अच्छा, ये जो मुंतखब हदीस है ये किसकी लिखी हुई है? ये हदीस है क्या? मुंतखब, हाँ हदीस है ना वो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये किसकी लिखी हुई है? अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, वो उसमें हदीस लिखा हुआ नहीं है, मतलब किसी ने गड़के की लिखी है ना वो? कॉपी किया है ना, कॉपी किया है ना उसको, बड़े की तरफ से कॉपी किया उसको। अपने घर का नूर देखो यार, कॉपी किया ना यार। अरे यार तुम्हारे घर का नूर देखो। कहते हैं कि बात तो मैंने अपने आप को आपकी रोनियों पर पलने वाले कुत्ते से भी बदतर समझा हूँ। ठीक है, अपने आप को कह रहे हैं मैं एक बार पढ़िए। मैं अपने को आपकी, मगर आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप जो है ना, और जो डैश है ना, लकीर है ना, वो सब देख के आप थोड़ा पढ़िए, ठीक है? ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट बता रहा हूँ तुमको, मैं बगैर देखे नहीं बता रहा हूँ। मत पढ़िए, पूरा सेंटेंस पूरा करने का, लकीर है वहाँ पे रुकने का, एपोस्ट्रोफी है वहाँ पे रुकने का, वो सब देख के पढ़ने का। ऐसा नहीं है कि यार लकीर आप वहाँ पे रुका नहीं आगे चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सबूत से मतलब है ना? आपको सबूत से मतलब है ना? नहीं, पढ़ने जाएगा ना तो फिर हम सेंटेंस को गलत तरीके से पढ़ेगा तो वो गलत मतलब निकलेगा ना उसका। अरे उफो, ऐसा करो, अकाबिर का मकाम तवाज़ो, ये किताब खरीदो तुम, ठीक है? इसमें देख लो जाके। आप अभी पढ़ लीजिए, मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा उसी तरह पढ़ना, ठीक है? आप पढ़िए, मैं सुन रहा हूँ। मैं आपको आपकी रोटियों पर पलने वाले कुत्ते से ही बदतर समझता हूँ, ठीक है? कौन कहता है? ये उलमाए देवबंद का एक बुजुर्ग है जो कहता है मैं अपने आप को आपकी रोटियों पर पलने वाले कुत्ते से भी बदतर समझता हूँ, ठीक है? शेखुल हिंद हजरत मौलाना सलीमुल्लाह खां साहब दामत बरकातुहुम, समझे? कितना मोटा अल्फाज लिखा है, ये कितना बड़ा दामत बरकातुहुम बन गया। बहरहाल दामत बरकातुहुम ने अपने इस्लाही बयान में आपका तज़किरा करते हुए फरमाया, हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी लानतुल्लाहि अलैह शरह अबू दाऊद, हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब लानतुल्लाहि अलैह के शेख और उस्ताद हैं। हाँ भाई, इसमें हंसने की जरूरत नहीं है, मैं रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहता, लानतुल्लाह अलैह को लानतुल्लाह अलैह कहना चाहिए। आपका कहने से वो लानतुल्लाह नहीं बनेगा, ठीक है? पढ़िए। खैर आप आगे की बात सुनिए, गुफ्तगू सुनिए, ठीक है? इनकी पूरी हकीकत आप सुन लें, फिर पता चल जाएगा ये कितना बड़ा नूर था। अच्छा ये बताइए, आपने ये कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं अंधेरी जगह में चले जाएं तो वहाँ उजाला हो जाए, ये बोला था ना आपने थोड़ी देर पहले हुजूर के लिए? मैं आपको ये फर्क बताया, हिदायत का नूर बताया था। हिदायत का नूर बताया था। हाँ, आपने हिदायत का नूर बताया था, मगर ये नहीं कहा था कि हिदायत का नूर किस तरह होता है, इसका ये बताया था आपको मैं मिसाल की। खैर मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अंधेरे कमरे में चले जाएं तो क्या रोशनी हो सकती है? तो इसी तरह कोई वाकया पेश आया क्या? पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर हुजूर के साथ नहीं आया, किसी और के साथ हो सकता है? देखो, एक तो होता है वलियों का करामत होता है, देखो बहुत सारा करामत होता है। वली नबी से अफजल है? नहीं, अफजल नहीं है। तो जब अफजल नहीं है तो जो काम नबी से नहीं हुआ वो वली से क्यों? ऐसा कैसा? वली को जो भी मिलता है वो नबी के दर से मिलता है, नबी का हिस्सा मिलता है। देखो दिखाओ कुछ नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि जो चीज नबी को हासिल नहीं है क्या किसी उम्मती को हासिल हो सकती है? मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, वली जो होता है ना, अल्लाह के वली जो है ना, उसको एक एक अल्लाह ने करामत देता है कि जिसके वजह से करामत बड़ी है या मौजज़ा पेश आता है। करामत बड़ी है या मौजज़ा? जो नबी के साथ जो चीज वो बड़ा है ना। मैं आप जो सवाल पूछा उसका मैं एक जवाब दे रहा हूँ आपको। नबी जो मुझे जब आ रहा है ना, तुम देवबंदी शैतान के मानने के तैयार हो, ठीक है? नहीं यार, वैसा देखो आप साबित करो ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, आप साबित नहीं हो रहा है ये चीज, आपके किस तरह मान लो मैं वो सबको? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम कह रहे हो, साबित नहीं हो रहा है। आप जो अब्दुल मुस्तफा साहब का जो बात बोल रहा था यार, इस पूरी बात बता रहा हूँ। अब मैं बताऊं कि मस्जिद जो है कैसे नूर बन गई। हजरत सहारनपुरी ने फरमाया कि मैं आपका खादिम हूँ, आप चाहे सीने से लगाकर बैत फरमा लें या धक्के देकर निकाल दें, और रही बड़े होने की बात तो मैं अपने आप को आपकी रोटियों पर पलने वाले
कुत्ते से भी बदतर समझता हूँ, यानी गुनहगार समझता हूँ। ठीक है, इस कदर जो है अपने आप को आजिजी और इनकिसारी में इस बंदे ने नीचे गिनाया। यानी वो कह रहा है कि मैं जो कुत्ता आपकी रोटियों पे पल रहा है मैं उससे भी कमतर। अब हाँ, एक बात और मुझे याद आ गई, आपने मुझसे ये कहा था कि इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा आलिम ये कैसे कह सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देवबंदियों का बेनकाब चेहरा देखने के लिए, देवबंदियों की ओरिजिनल हकीकत देखने के लिए, देवबंदियों का नापाक और मजरूह चेहरा और उनका नापाक अकीदा सुनने और समझने के लिए नूर हसन बरकाती रज़वी रद्द वहाबियत नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और ये जो घंटी बेल आइकन है इसको भी जो है दबा दें और आल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं है, सिर्फ नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आ जाएगा। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, मैसेज पहुंच जाएगा। मेरे नेटवर्क को सिर्फ सुन्नी वफादार रसूल ही जो है वो सब्सक्राइब करते हैं, बाकी बद मजहब ग्रुप से निकल के भाग जाते हैं, मेरे सब्सक्राइब को छोड़ देते हैं। सिर्फ सुन्नी मुसलमान वफादार रसूलों से ही मैं गुजारिश कर रहा हूं कि इस YouTube चैनल को वफादार रसूल ही सब्सक्राइब करें, बाकी बद मजहब बदअकीदे वैसे ही देख लें और अपने धर्म की हक़ानियत को पहचान जाएं। देवबंदी धर्म की जो बुनियाद है वो झूठ पर टिकी हुई है। जिसको यकीन ना हो वो नूर हसन बरकाती रज़वी की गुफ्तगू को सुने और मेरा चैनल निकालने के लिए टाइप करें नूर हसन बरकाती रज़वी रद्द वहाबियत। इंशाअल्लाह जब इतना डालेंगे आप तो मेरा चैनल निकल के आ जाएगा, मेरी वीडियो निकल के आ जाएंगी। इंशाअल्लाह उनको आप देख सकते हैं और देवबंदियों के बड़े बड़े मुफ्तियों से जो गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है, उसमें वो किस तरह से जलील और रुसवा हुए हैं, किस तरह से जो है अपनी दोगली पॉलिसी का इजहार कर रहे हैं, उसको जरूर आप मुलाहिजा फरमाएंगे।